آج میرے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بیاہ جائے، گھر بہو آئے اور گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ خیر اب تو میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک سگڑ سی پیاری سی لڑکی چنی تھی۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ میری بہو بہت زیادہ جہیز اپنے ساتھ لائی تھی اور ساتھ میں ایک نوکرانی بھی لائی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ بہو نوکرانی لے آئی ہے، جبکہ کام کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن مجھے نوکرانیوں کے کام پسند ہی نہیں آتے۔ میں نے من ہی من میں سوچ لیا کہ رہ لے یہ ہفتہ دو ہفتہ یہاں، پھر اس کو چلتا کروں گی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بلکہ اس میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ نہ جانے کیا تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچتا تھا، مجھے بڑی انسیت سی ہو گئی تھی اس سے۔ جہاں تک میری بہو کی بات تھی، اس کو میں نے پہلی بار پارلر میں دیکھا تھا جہاں میں اپنی بانجی کے ساتھ گئی تھی، ورنہ پارلر والر کے چکر میں نہیں پڑتی۔ لیکن جب میں نے پارلر والی لڑکی کو دیکھا تو مجھے وہ بہت اچھی لگی، سلجھی ہوئی، تمیزدار۔ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے رشتے کی بات کر لی اور یہ سلسلہ نکل پڑا۔ اب میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ میری بہو نور بہت اچھی تھی اور کام والی بلقیس بھی، لیکن بہو جو ملازمہ اپنے ساتھ لائی تھی وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ یہ بات کافی عجیب تھی۔ خیر میں خاموش رہی۔ میں اپنے کچن کا کام کسی کو کرنے نہ دیا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی یہاں بھی مجھے مات دے گی۔ وہ بہت ہی پاک باز عبادت گزار تھی۔ میں نے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ اب میں بہت سکون میں تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف گھر کے کام کرتی بلکہ میری اتنی خدمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی، لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ گھر میں تو نقاب اتار دیا کرو، بھلا یہاں ہوتا ہی کون تھا، ہم ساس بہو ہوتے تھے، باقی بیٹا تو سویرے ہی کام پر نکلتا تو شام کو لوٹتا تھا۔ مگر میری بات پہ وہ بہت گھبرا جاتی تھی، اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگتے تھے۔ میری بہو آ گئی، اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ امی جان اس کو کچھ نہ کہیں، یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، یہ بہت ہی پردے دار ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، تو آپ اسے نہ کہا کریں۔ بلکہ اس کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، امی جان ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کرنا ہی کیا ہے، جب ہمیں اتنا سکھ دے رہی ہے، گھر شیشے کی طرح چمکتا ہے، کھانا لذیذ بناتی ہے، میں نے دیکھا ہے رات گئے تک آپ کو بھی دباتی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر بدک ہو جائے اور کام ہی چھوڑ کر چلی جائے۔ بہو کی بات پہ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں عجیب سی کھٹپٹ ہو رہی تھی۔ بھلا عورتوں سے کیسا پردہ؟ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ بلقیس کچن کے ساتھ والے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظریں اب بلقیس پر تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی عبادت گزار ہے۔ وہ نماز میں مگن تھی۔ وہ اس رخ پر بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ دوسرے طرف تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس وقت اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے، اور اچانک جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے کا رخ میری جانب ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر میری نظر پڑی میں گرتے گرتے بچی، میری روح تک لرز گئی۔ یا اللہ، یہ تو مجھے اچانک سے کھانسی کا دورہ پڑا اور میں نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، لیکن تب تک بلقیس کی نظر بھی مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ بہت گھبرا کر اٹھی تھی اور کمرے کے طریق گوشے کی جانب آ کر خود کو میری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن میں نے اس کو تب تک دیکھ چکی تھی۔ تب سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی، ساری رات میں سو نہ سکی تھی۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ میری بہو روبرو کھڑی ہو کر اس سے سارا سچ اگلواؤں، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک بار میرا بیٹا آفس چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسی وقت طلاق دے دیتا۔ طلاق کیا، شاید وہ طیش میں آ کر نور کو جان سے ہی مار دیتا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑ جائے۔ میں نور کو شک کا فائدہ دے کر اس سے سچ جاننا چاہتی تھی، لیکن اتنا تو میں سوچ ہی چکی تھی کہ اس کا اگر رتی برابر بھی قصور نکلا تو اس کو طلاق میں خود دلواؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس کا قصور ہے۔ اب بہو ہی سب کچھ بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میری بہو نور اٹھ چکی تھی۔ اس نے ناشتہ کر لیا تھا اور اب اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔
मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया था। यही वक्त था जानने का। फौरन बहू के कमरे में गई, दस्तक देकर अंदर चली गई। बहू अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पर बैठ गई और उससे पूछा कि ये क्या माजरा है और क्या है, मेरे घर में ये कैसा खेल तुम दोनों खेल रहे हो, बल्कि इस कौन है, बल्कि इसका हर क्या राज है। आज मैं सच जान कर ही रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच ना बताया। मेरी बात पे नूर मेरे कदमों में गिर गई। अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बाहर ये सब क्या माजरा है, मुझे पूरी बात बताओ। वो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई। अम्मी, मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि कासम को इसका इल्म नहीं होने देंगे। देखो नूर बेटा, मुझे अब सच बताओ। मैं सच जानने के बाद ही फैसला करूँगी। मेरी बात पे वो अपने आंसू पोंछकर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया कि मैं नूर खाते पीते घर से तल्लक रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वो बाहर मुल्क में रहती थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई फहद, मैं कॉलेज जाती थी, फहद स्कूल में। हम सब बहुत खुश थे कि अचानक पापा को बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे माली हालात बहुत खराब हो गए। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस ना देने की वजह से फहद को भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्जे में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि सब तब ही साथ देते हैं जब आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे, उनसे एक छोटा मकान किराए पे ले लिया और उसका 6 महीने का एडवांस दिया गया। घर में 2 महीने का राशन डलवाया। अब बस चंद हजार रुपए ही बचे थे, वो भी कब तक चलते। मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो चंद 100 रुपए काफ़ी नहीं थे। पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वो पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के बोझ ने अब तो उनको और निडाल कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया कि वो परेशान ना हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहाँ भी मायूसी हुई क्योंकि मेरी तालीम कम थी। वो 2000 रुपये में मुझे रखना चाहते थे और इस महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता है। मैं बाहर आ गई। तेज चिलचिलाती धूप में बस स्टॉप के बेंच पर बैठकर बस का इंतजार कर रही थी और अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरे गालों पर फिसलते जा रहे थे कि किसी ने पूछा कि क्यों रो रही हो। मैंने चौंक कर सर उठाया। मैं बहुत डर गई थी। मुझ पे खौफ तारी हो गया था क्योंकि वो एक अजनबी शख्स था और हमेशा मुझे यहाँ बैठा देखकर घूरता रहता था। मगर आज उसकी इतनी जुर्रत देखकर मुझे बहुत खौफ आया। मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह सिमट कर बैठ गई, मगर वो वहाँ भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने उससे कहा कि वो चला जाए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा मैं अगर चाहूँ तो तेरी मदद कर सकता हूँ। मैंने दिल में सोचा ये मेरी मदद क्या करेगा, ये बेचारे मांग कर अपना पेट पालते हैं। मैंने उससे कहा मुझे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए और वो जाए यहाँ से, लेकिन वो ना माना और बज़िद था नचार। मैंने बताया कि मेरे हालात अच्छे नहीं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। ये सुनकर उसने अपना मशवरा दिया कि मैं अपना पार्लर क्यों नहीं खोल लेती। मैं उसकी बात सुनकर हंसी कि इसके लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि किसी पार्लर में कोर्स कर सकूं। सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं। ये सुनकर उसने अपनी जेब से कागज और कलम निकाला और कागज पर कुछ लिखा। फिर कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो, फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैंने चिट उसके हाथ से ले ली और वहां से उठ गई क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं उस सारे वाक़े को भूल भाल गई। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे जहन में धमाका हुआ और दिन वाला सारा वाक़या मुझे याद आ गया। कैसे मैं बस स्टॉप पर बैठी थी कि अचानक वहाँ वो अजनबी शख्स आ गया। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो वो मुझे देने का कह रहा था, और अगर है भी तो वो मुझे क्यों देगा। आजकल तो किसी को कोई उधार तक नहीं देता। उसकी बातों पर मुझे एतबार तो नहीं आया था, मगर फिर भी न जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वो चिट निकाला जिस पर उसने अपना नंबर लिख के दिया था और अपने मोबाइल में उसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर दिया और सो गई। इस वाक़े को काफ़ी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई थी और अब तो वो ट्यूशन भी छूट गए थे।
मुझे और पापा को फहद के स्कूल की बहुत फिक्र हो रही थी और उस दिन मैं अपने एक दोस्त के घर गई उससे बात करने कि मुझे किसी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर रखवा दे। किसी से बात करके मैं वहां से निकली तो रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर था। उसे देखकर मुझे उस अजनबी की बात याद आ गई। मैं अंदर चली गई और कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ। पार्लर की ओनर ने कहा कि वो कोर्स करवाने का 1 लाख रुपया लेती हैं और 1 साल का कोर्स है जिसमें वो मुझे सब कुछ सिखा देंगी। ये सुनकर मैं मायूस होकर वहाँ से ये कह कर निकल गई कि कुछ दिन बाद बताती हूँ आपको। लेकिन मैं 1 लाख रुपया कहाँ से लाती? मेरे पास तो 2000 रुपये भी नहीं थे। खैर मैं घर आई और कुछ देर बाद उस अजनबी का नंबर मिलाया। उसने मेरा फ़ोन काट दिया और खुद कॉल की। पूछा कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी। मुझे हैरत हुई कि उसने मेरी आवाज़ बगैर सुने ही कैसे पहचानी, मगर मैंने उस पर कुछ ज़ाहिर नहीं किया और कहा कि हाँ मैं वही लड़की हूँ जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी और पूछा कि वो कहाँ से मुझे पैसे देगा जबकि वो खुद बहुत गरीब है। वो ये बात सुनकर बहुत हंसा कि तुम्हें पैसों से मतलब है, वो तुम्हें मिल जाएंगे, बोलो कितने चाहिए। मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपया चाहिए पार्लर के कोर्स के लिए और मैं ये पैसे उसे लुटा दूंगी। उसने मुझे उसी बस स्टॉप पर बुलाया। मैंने हामी भर ली। अगले दिन मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पहले से मौजूद था। उसने मेरे हाथ में लिफाफा दिया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने वो लिफाफा खट से अपने पर्स में रखा और वापस घर आ गई। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके मैंने लिफाफा खोला तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि लिफाफे में 2 लाख रुपए पड़े थे। मैंने उसे कॉल की और पूछा कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत थी, तुमने 2 लाख क्यों दिए है? तो वो बोला 1 लाख पार्लर में दोगी तो 1 तक आस्ता आस्ता घर में खर्च करना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जोश में आकर उससे वादा कर बैठी कि ज़िंदगी में उसे मेरी कभी कोई मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं लाजमी करूँगी। मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैंने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन पार्लर में पैसे जमा करवाए और पार्लर ज्वाइन कर लिया। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। फहद को स्कूल में दाखिल करवा दिया। इसी तरह साल पूरा हो गया। पार्लर से मुझे कोर्स सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब मैं अपना पार्लर खोलना चाहती थी। मैंने अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल मिलाई और बताया कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। उसने कहा मैं फिर उसी जगह पर आ जाऊं। वहां गई तो उसने मुझे लिफाफा दिया और कहा मेरे साथ चलो। मैं हैरानी में मुब्तला हो गई तो बोला मैंने तुम्हारे लिए एक पार्लर देखा है जो कोई किराए पे दे रहा है, मैं उसके साथ चलेगी। और सारे मामला तय किए और घर आ गई। और दूसरे दिन मैं पार्लर पर बैठ गई और पार्लर ओपन का बोर्ड भी लगा दिया। अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली थी। पार्लर चल पड़ा था। घर के हालात भी ठीक होने लगे थे। मैंने तो उसे अपना मोहसिन समझ बैठी थी और दिन रात उसे दुआएं देती रहती। ख़वातीन जोक दर जोक आती और उनमें से एक खातून आप भी थी जिन्होंने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी कि एक दिन अजनबी मददगार मेरे पास आया और बोला कि उसे मुझसे कुछ चाहिए। मैंने कहा कि मैं उसके सब पैसे लुटा दूंगी, वो कुछ वक्त दे मुझे। उसने कहा उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे मेरी मदद चाहिए। ये उसने मेरा ही नादानी में किया हुआ वादा मुझे याद करवाया जो मैंने उसे 2 लाख रुपए के बदले में किया था। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गई थी। न जाने अब वो मुझसे क्या मांग ले, लेकिन मैंने दिल कड़ाकर कहा मांगो, क्या मांगते हो? लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे औस्तान हता हो गए। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपने जहेज में लेकर जाओगी। मैं हैरान हो गई, मगर ये कैसे हो सकता है? तो वो बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे अपने साथ काम वाली बनाकर ले जाओगी। मैं हर वक्त खुद को डांप कर रखूँगा, किसी को खबर तक नहीं होगी कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। तब मैं चिल्लाई और कहा मैं ये सब क्यों करूँगी? मैं मानती हूँ तुम मेरे मददगार हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद भी हूँ, मगर मैं अपने होने वाले शोहर के साथ इतना बड़ा धोखा हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं क्यों एक गैर मर्द को अपने घर ले जाऊँ? मुझे क्या मालूम तुम किस इरादे से और कैसी नीयत के साथ जाना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने मुड़कर अपनी तिजोरी का लाक खोला जो नोटों से भरा पड़ा था। मैंने 2 लाख पहले से ही अलग करके रखे हुए थे कि न जाने कब मेरे मददगार को इन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने वो लिफाफा उसकी जानब बढ़ाया और कहा कि गिन लो, इसमें पूरे 2 लाख हैं, ये लो और जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। वो मेरी बात सुनकर एकदम से मेरे पाँव में गिड़गिड़ा कर रोने लगा। मैं खौफजदा होकर पीछे हटी। वो ज़ारों कतार रो रहा था
उसने मेरे सामने हाथ बांध लिए थे। वो ऐसे रो रहा था जैसे एक छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ से जुदा होकर खौफजदा हो, रो रहा हो, घबरा रहा हो। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिस गया। मैं भी ज़मीन पर उसके पास बैठ गई। बिलावल भाई, क्या बात है, आपको क्या हो गया है? मेरी बात सुनकर वो पुरुम्मीद नज़रों से मुझे देखने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि नूर, मुझे मेरी अम्मा से मिला दो। कौन सी माँ? मैं हैरान हो गई थी। उसने कहा, तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो, मेरी आरज़ू को पूरा हो लेने दो। उसकी बात सुनकर मुझे धचका सा लगा। ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे शोहर का भाई हो? अगर वो मेरी सास का ही बेटा है तो यूँ चोर दरवाजे से क्यों जाना चाहता है? जब वो बोला, मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात सुनकर हैरान होगी। तुम ये भी सोच रही होगी कि अगर मैं सच कह रहा हूँ तो सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता। मेरी मजबूरी है नूर बहन। वो अब भी रो रहा था। रोते रोते वो मुझे बता रहा था, मैं जब पैदा हुआ तो मेरी अम्मा ना खुश थी। उसको ढेर वसवसों ने आ गिरा था। तुम खुद ही सोचो, एक लड़की ससुराल ब्याह कर जाए और जल्द ही उम्मीद से हो जाए तो वो कितनी खुश होती है। उसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसके कदम मजबूत कर देगा। मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी अम्मा के कदम मजबूत ना हो सके, बल्कि वो दुदकारी जा चुकी थी। मेरी दादी मेरी अम्मा को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त न करती थी। हालांकि उसमें कसूर मेरी अम्मा का तो ना था। ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसने मुझे ना लड़का बनाया ना लड़की। मेरे लिए तीसरे जिन्स का इंतखाब कर लिया। बिलावल की बातें सुनकर मैं सख्ते में आ गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने अम्मा को बताया कि तेरे घर तीसरे जिन्स की पैदाइश हुई है तो अम्मा ने नज़रों ही नज़रों में उसे इल्तिजा कर डाली। वो भी अम्मा का दुख समझकर चुप हो गई और अब्बू को मुबारकबाद दी कि आपके घर लड़का पैदा हुआ है। हर कोई मेरी अम्मा के आगे पीछे होता रहता, जबकि वह खामोशी से कोने में बैठी आंसू बहाती जाती थी। मैंने जब भी अम्मा को देखा तो वो रोती रहती थी। मुझे नहीं मालूम उसने कैसे मुझे घर वालों से छुपाकर बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी मालूम ना हो सका। अम्मा मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाती थी और लड़कों वाले स्कूल भी डाल दिया था। लेकिन एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है जब मैं 10 साल का हुआ तो अब्बू ने घर ही में छोटी सालगिरह मनाने का सोचा। अम्मी मेरे लिए बेहतरीन पैंट शर्ट निकाल कर रख गई, लेकिन मैंने रफ़ा की इस्त्री की हुई फ्रॉक पहन ली। अम्मा की सुरही लगा ली। जब बाहर केक काटने के लिए निकला तो सब हंस दिए। अम्मा भी हंस दी। मेरे सर पर हल्की सी चपट लगाकर बोली कि तुम्हारी मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वह मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तैयार करते हुए बेतहाशा रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वह बोली, तुमने बहुत गलत किया है। अगले दिन अम्मा मुझे बाजार ले गई, लेकिन वो बाजार तो ना था। वो मुझे दूर एक कस्बे में ले गई। तंग और तारीख गलियों से गुजरते हुए मुझे एक घर में ले गई जहाँ सब ही तीसरी जिन्स के अफराद थे। बात बात पर ताली पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने अम्मी का हाथ हिलाकर कहा, अम्मा चलो यहाँ से, मेरा सांस घुट रहा है। मगर वो एक बुजुर्ग से गुरु के पास बैठ गई। न जाने क्या बातें कर करके रो रही थी। गुरु ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। और वही हुआ जिसका डर था। मेरी अम्मा उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं उनके पीछे लपका तो मुझे गुरु के चेलों ने पकड़ लिया। मैं चीखता रहा, चलाता रहा, लेकिन अम्मा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सुबह सवेरे ही अम्मा मुझसे मिलने चली आई। मैंने उनसे लिपटकर एक बार फिर बहुत रोया था। अम्मा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और चली गई और मेरे किसी भी सवाल का जवाब ना दिया। गुरु मुझे बहुत प्यार करता था। मुझे उससे घिन आती थी। मैं सबसे अलग थलग बैठा घर वालों को याद करता रोता रहता था। एक दिन गुरु मेरे पास आकर बैठ गया। मैं रो रहा था तो वो भी रोने लगा। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप तो पैदा होते ही उसे एक ऐसी जगह पर छोड़कर चले गए थे। उसने तो अपने माँ बाप का चेहरा भी नहीं देखा। गुरु ने मुझे बताया कि मैं भी उन जैसा ही हूँ। मुझे अब उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था और मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। अम्मा ने मुझे बताया था कि सब मुझे याद करके बहुत रोते हैं, लेकिन अम्मा ने उनसे झूठ बोल दिया था कि मैं गुम हो गया हूँ। मुझे उस दिन पता चला कि इन सब के पीछे मेरी अम्मा ही थी। वो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी और अब मैं मुकम्मल तैयार हो चुका था। अम्मा मुझसे मिलने आती तो मैं ना मिलता। पूरे शहर में मेरा चर्चा होने लगा था और मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गुरु बहुत ही ज़ईफ़ हो चुका था। मैं सारा दिन उसकी खिदमत करता। गुरु मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता। एक दिन उसने मुझे अपने पास बिठाकर कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुरान सीखो। उसने मुझे एक पता दिया कि मैं वहाँ जाऊँ। इतना कहकर वो इंतकाल कर गए। अब ये मेरे गुरु की आखिरी ख्वाहिश थी। न चाहते हुए भी मुझे इस पते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था जब घर के अंदर से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनी। फिर वही आवाज़ उस आयत का तर्जमा पढ़ने लगी थी।
तर्जमे में अल्लाह पाक अपने गुनाहगार बंदों से वादा कर रहा था कि अगर वह बुराई से पलट कर आएँ और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। इस आयत ने मुझ पर बड़ा असर किया था। मैं घर आकर रोता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा और यूँ मैंने कुरान की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। डांस वगैरह छोड़ दिया था, अपना पेट पालने के लिए दिहाड़ी करने लगा। मैंने अपना सारा पैसा जमा करके रखा था कि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके, तो तुम मुझे ज़रूरतमंद लगी इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। मैं अपनी अम्मा से मिलने का शदीद ख्वाहिशमंद था। मैं उनकी खिदमत करके खुदा को राज़ी करना चाहता था और एक दिन मैं तुमसे मिलने पार्लर आया तो मैंने वहाँ अपनी अम्मा को देख लिया। फिर पता चला कि वो तुम्हें अपने बेटे यानी मेरे भाई से ब्याहना चाहती थी। बिलावल सारी बात सुनाकर रो रहा था। मैं भी रोती रह गई। अम्मी जान, उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक ना पाई थी। क्या मैंने गलत किया? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैं तो बहू के गले लग कर रो रही थी। मुझे मेरा नन्हा बिलावल बड़ा याद आया। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वो अपना सामान पैक करके बैठा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उसको उठाया और उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया और फिर वो मुझसे जुदा हुआ और अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीन कर कहा कि वो मेरे पास रहेगा। वो घबरा गया और बोला, अम्मा मैं आपकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। तब मैंने कहा, बेटा ज़िंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों का डर इस कदर मुझ पर हावी हो चुका था कि मैं रब के गज़ब को तो भूल ही गई थी। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। अल्लाह का शुक्र, उसने मुझे मेरी गलती सुधारने की तौफीक दी थी।